Hi guys, welcome to the first video of Locult. This is Akshita Tambi, and at Locult we try to bring you all the law related information in a very simple way because we understand that law can be very difficult to deal with. So in today's video we are going to cover the difference in the ways law treats both of these platforms, which is OTT platform and the television platform, differently. To begin with, I know all of us are sitting back at our homes and we are very tired. We have basically, like, all those people who are not working from home have basically nothing to do. Like, obviously we are trying new skills, we are trying our hands in the kitchen and all of that sort. But one thing that all of us are doing in common is watching a lot of shows these days. And I personally also watched a lot of shows. I watched Ramayan, Mahabharat, and a couple of shows on Netflix, and a good content on Hotstar Prime as well. So after watching like quite a lot of shows, I realized that there is a huge difference between the content on the OTT platforms and on television. So out of curiosity, I decided to do something. I decided to watch the first episode of Patalok again, and now I have few observations which I would like to share with all of you. So my first observation is that in every 1.5 minute there is one word, one abusive word which is used. ठीक है. And the second observation is the average which I talked about in the first point was good in the first 20 minutes, but then it dipped. And the third and the most important observation is that most of the abuses were addressed to women, their sexual life, their workplace, and anything and everything related to women. I mean, जब हम इतना इक्वालिटी चिल्लाते हैं तो थोड़ी मर्दों को एड्रेस करते हुए भी अच्छी गालियाँ लेके आते हैं ना, तो ढंग से इक्वालिटी चिल्लाते हैं फिर. एक्चुअली आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग. यहाँ पे जो मैं गालियों की बात कर रही हूँ, मैं एक भी ऐसी गाली की बात नहीं कर रही छोटी कुत्ता टाइप की गाली, मैं काफ़ी अच्छी वाली गालियों की बात कर रही हूँ. ऑन द अदर हैंड, डायरेक्टर्स से दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. आवर क्रिएटिव फ्रीडम विल गेट हैम्पर्ड इफ यू रेगुलेट द कॉन्टेंट. तो ठीक है, आई अग्री, मैंने माना कि चलो आप जो कह रहे हो ठीक है, बट मेक मी अंडरस्टैंड वन थिंग. वाई आउट ऑफ 82 न्यूड सीन्स in Game of Thrones, to 61 were of women and only 21 were of men? मतलब does your creative freedom really come from the women? And also one more thing which is very important is that I don't understand why the content that we see on OTT platforms, मतलब exactly the same content. For example, if I'm watching Game of Thrones on Hotstar, वो एकदम अलग होगा, वो ओरिजिनल होगा जैसा रिलीज हुआ था. बट देन इफ आई एम वॉचिंग द सेम थिंग ऑन टेलीविजन, तो उसका जो है वो कंटेंट ही बदल जाता है. मतलब इतनी एडिटिंग के बाद वो शो आता है एकदम प्योर होके कि अब टेलीविजन पे सब उसे देख सकते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, हमारे पास उसके लिए कोई लॉज नहीं है, लेकिन जो टेलीविजन पे कंटेंट आता है, ऑल दोज थिंग्स विद दैट वी सी ऑन द टेलीविजन हैज़ लॉज. ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं टेलीविजन पे आने के लिए. So when you're watching any show on, for example, you're watching Ramayan on DD National, it comes to you that the service that is being provided to you is called Internet Protocol Television Services, IPTV services. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो end user है ना, for example you and me who are actually watching the shows, मतलब we do not have any control over the content that we are watching. So suppose you don't like some sort of scene, for example I might not like sadist वाले जो scenes आते हैं वो, and I want to skip that part, but I cannot do it because I don't have that power. ठीक है, तो I have two options. like अगर हमें कोई भी सीन पसंद नहीं आता है टेलीविजन पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो हम उसको स्किप कर दें, हम लोग कोई चैनल स्किप कर दें, या फिर हम लोग टेलीविज़न ही बंद कर दें. तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं. तो जो एक्चुअल कंट्रोल होता है वो एंड यूज़र के पास नहीं होता, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास होता है. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड OTT प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जो कंटेंट एक टेलीविजन पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स यू कैन वॉच ऑन टेलीविजन, बट यू कैन वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स ऑन योर
लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लेकिन टेलीविज़न पे जो आता है वो सिर्फ आप टेलीविज़न पे देखते हो। ऑल्दो अब वो चीज़ें मर्ज हो रही हैं, यू कैन एक्चुअली वॉच, लाइक अब जब जियो टीवी जैसी एप्लीकेशंस या फिर और भी अलग अलग तरीके आ गए हैं, यू कैन एक्चुअली स्मार्ट टीवीज़ में यू कैन स्क्रीन रिकॉर्ड, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मर्ज हो रही हैं इसकी वजह से। बट मेजरली यही है कि हमारे पास कोई लॉ नहीं है, बट हमारे पास जो OTT पे कंटेंट, तो मतलब मेजर क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। कमिंग बैक टू द लीगल एस्पेक्ट, टीवी के लिए वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड दे हैव द पावर टू शट डाउन एनी चैनल विच दे डोंट फाइंड इज गुड फॉर द सोसाइटी। तो फॉर एग्जाम्पल एशिया नेट वॉज टेकन डाउन बिकॉज इट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट, और उसके अलावा बिग बॉस की भी जो टाइमिंग्स है ना वो चेंज हो जाते हैं अगर उसका जो कंटेंट है वो यंगस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो। तो फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास लॉ नहीं है, बट वी हैव सेल्फ रेगुलेशन। तो अगर आपको ऐसा मन करता है, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती है कि ये मेरे संस्कारों के एकदम विरुद्ध है और ये सब टीवी पे नहीं आना चाहिए, इट शुड नॉट बी आउट देयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर है येस, देयर इज सेक्शन 292 इन द इंडियन पीनल कोड विच प्रोहिबिट्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑब्सीन कॉन्टेंट, ठीक है, which promotes child pornography, maybe which promotes violence, which promotes discrimination, which promotes female abuse, anything of that sort। तो ये सब सेक्शन 292 के अंदर आता है। उसके अलावा एक है सेक्शन 4 फॉर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रूव कर दो कि ये वाला पर्टिकुलर सीन ऑब्सीन है, तो आप उसको हटवा सकते हो, आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हो। और इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज। उसमें ये लिखा हुआ है कि एनी कंटेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बिना कपड़ों के खड़ा है तो वो ऑब्सीन नहीं होता। ऑब्सीन से वही कंटेंट होगा, वही मटेरियल होगा विच लीड्स टू सेक्सुअल अराउजल, ओनली दैट कंटेंट इज ऑब्सीन। ओके, तो मतलब MIB जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैज आस्क्ड ऑल ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स टू हैव अ सेल्फ रेगुलेशन कमिटी विद इन themselves and the guidelines should be made in such a way that it also concerns the content guidelines which is given in DCCC। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है, या फिर कोई वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, या फिर विमेन अब्यूज़ को प्रमोट कर रहा है, तो वो सारे कंटेंट आप हटा दो। तो ये वाली जो बात है पर्टिकुलरली सेल्फ रेगुलेशन की, ये कुछ चैनल्स जो हैं इस पर अग्री करते हैं, कुछ चैनल्स है जो हैं उस पर डिसअग्री करते हैं, और कुछ एक्चुअली कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस बात को मानेंगे। बट मतलब इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी ऑब्वियसली, बट वॉट आई बिलीव इज़ कि जब भी हमारे तक कोई कंटेंट पहुंचता है तो इट शुड, वेन एवर यू आर वॉचिंग अ कंटेंट, तो इट शुड एड सम और द अदर वैल्यू इन योर लाइफ। आई नो एंड I agree that entertainment is very very important, but if you're getting something out of a content, a material, any show, you're gonna like it in the end of the day। तो बस यही बात है, or let's see what happens। And thank you for watching the video, and thank you for being here। Any opinion, any suggestion, anything that you want to add on, you can obviously, the comment section is all yours। And also for more information you can visit the website lawcult.com, and thank you for being with us।